Hello students, hope you all are fine. In this video, I would like to begin with the second chapter of grammar syllabus, that is nouns. Okay, please open your book for studying and let us study this chapter. See, there is written in your book, let's link up. Okay, let's see the first thing what is given in your book under the heading noun. Form teams of 4 players each. Your teacher will call out a letter from the alphabet. You must write the name of person, places, animal and thing starting with that letter. Okay. In this exercise you have to write name of person, place, animal and a thing. Okay, and here is the exercise. We have letter B, and for letter B we have written name as Bunty, place as Baghdad, animal as bear and thing as bed. And another letter F, similarly we have written the person, name, place, animal and thing. You can write from your choice also. Okay, noun. These are all noun. Noun, what is noun? Name of person, place, animal or thing. Okay, noun is name of person, place, animal and thing. Okay, this was this exercise. Let's move further. Okay, now let's study proper nouns. Proper nouns are the names of particular people or places. They always begin with a capital letter. What is a proper noun, students? A special name given to some person. जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं डॉग. तो डॉग जो है DOG डॉग ये प्रॉपर नाउन नहीं है. अगर आपका डॉग है और आपने उसका नाम रखा है टॉमी, तो टॉमी प्रॉपर नाउन है और जो डॉग है वो कॉमन नाउन है. ठीक है, कॉमन नाउन की एक फीचर होती है कि आप उसको देखकर पहचान सकते हो कि वो क्या चीज़ है. ठीक है, पर प्रॉपर नाउन एक स्पेशल नेम होता है जो कोई बताएगा तब आपको पता चलता है. ओके, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. Here is the exercise given to you. जो चीज़ें आपको कैपिटल करनी है वो चीज़ें आपको कैपिटल करनी है. जैसे कि नेम. Here is a name given ना, शाहजी. See, the bakery owned by Shahji sells bread, tarts, biscuit and Christmas cake. So here Shahji, S will be capital, and here Christmas, because it is a name of a festival. Now, that's why C will be capital. Now let's come to second. My friends Peter and Perrin. So here P will be capital and in Chennai C will be capital. Okay? Okay. Now see the third one. Have you seen the film Free Willy? So इसका भी नाम ये प्रॉपर नाउन है. ठीक है, तो F कैपिटल, W कैपिटल. ओके, नाउ सी फोर्थ वन. आई विल रिटर्न Ellen's books once I completed my English assignment. Okay, E capital and here Ellen's E capital. Please stop the video and please fill the exercise. Okay, now see the fifth one. I admire Sherpa Tenzing. Sherpa Tenzing, S capital, T capital. Okay, and then Mount Everest, M capital, E capital.
because these all are proper nouns. Okay, proper noun are the particular name, ये एक special name होते हैं. Let's move further. Now, common noun are used for classes of person, animal, place and thing. मैंने आपको बताया common noun simple name होते हैं जो किसी इंसान का होता है, एनिमल का होता है, जगह का होता है और थिंग का होता है. एक आम नाम जो सब जानता है. जैसे एक पेंटर, आप पेंटर को देख के पहचान जाओगे, रिवर को देख के पहचान जाओगे, फ्रूट को देख के पहचान जाओगे, कैटल को देख के पहचान जाओगे कि वो कैटल है. ओके, कॉमन नाउन आर द यूजुअल नेम, सिंपल नेम्स होते हैं. ओके, सी, कॉमन नाउन आर यूज्ड फॉर क्लासेस ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग. एग्जाम्पल, पेंटर, रिवर. ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखकर पहचान सकते हो. ओके, नाउ here is the exercise given. Please see the exercise according to the pages. I cannot give you page number because I cannot give you full page because it would not be proper. Okay, here are people who are telling you about the work they do. Write their occupation. Okay, in this exercise you have to fill answers. I design buildings. बिल्डिंग कौन डिज़ाइन करता है बेटा? तो एक ऐसा इंसान जो बिल्डिंग डिज़ाइन करता है उसको आर्किटेक्ट कहते हैं. ओके, सो राइट द आर्किटेक्ट. नाउ सी, आई ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड्स. मैं अनाज उगाता हूँ. कौन उगाता है अनाज? फार्मर. आई सेल मेडिसिन्स. केमिस्ट. आई मेंड ब्रोकन शूज़. मैं जो शूज़ ख़राब हो जाते हैं उनको सही करता हूँ. कौन? कॉबलर सही करता है. आई कार्व स्टैचूज़. मैं स्टैचूज़ बनाता हूँ. स्कल्पटर. ओके, स्कल्पचर. आई हैड द किचन इन अ होटल. तो किचन का हेड होता है ये, वो उसको चलाता है, शेफ चलाता है. ओके, you can see the proper spelling from this option box also. Please fill in your exercise. Okay, one more exercise is given here. Complete the table with common and proper noun. Okay, above one is the common and second one, below one is the proper noun. Building, red fort. Okay, planet, earth. Friend, you can write Tom. Sania Mirza is a player. Actor, for actor you can write any actor. For short name I have written here Alia. Belgium is a country. Okay, and bird you can write kiwi. Kiwi is a bird. Okay, let's move further. Okay, let us begin with one more type of noun, that is abstract noun. Abstract noun क्या होता है? एक ऐसा नाउन जो कोई भाव बताता है या कोई काम करना बताता है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये फीचर है कि वो एक ऐसा नाम है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है वो जिसको हम लोग छू नहीं सकते. वो ना ही तो इंसान होते हैं, ठीक है, ना ही कोई सामान होता है, ना कोई जानवर होता है, ना कोई जगह होता है. ये कोई काम होता है या तो कोई फीलिंग होती है. ओके, या एक खूबी होती है. ठीक है, क्या होता है? या तो कोई काम होता है, या तो फीलिंग होती है, या तो कोई खूबी होती है. कोई फीलिंग मतलब भाव. सी, I've told you 3 चीज़ें होती हैं. एक्शंस सच एज लाफ्टर, हंसना. रॉबरी मतलब चोरी करना. प्रैक्टिस मतलब उस चीज़ को बार बार दोहराना. ठीक है, फीलिंग्स में क्या आ जाता है? सैडनेस, जॉय, प्राइड. ये सब भी एक तरीके से नाउन है, पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इनको आप सिर्फ महसूस करते हैं. ठीक है, ये आप कर सकते हैं.
क्वालिटीज़ में आ जाता है ब्रेवरी, बहादुरी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ऐसे ही कर कर ये होता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। See, one exercise is given. You have to shade the boxes with abstract noun. ठीक है, तो मैंने आपके लिए पिंक कलर से शेड किया, आप किसी भी कलर से शेड कर सकते हो। ब्यूटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, पीस, जॉय, केयर, हेयर, ऑनेस्टी ऑल्सो, हॉरर ना डरावनी चीज़, ब्रिलियंस बहुत अच्छी चीज़, दिमागदार वाली चीज़, काइंडनेस, वॉयलेंस, थॉट। तो ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, इन सब को आप सिर्फ करते हो, महसूस करते हो, या तो एक खूबी होती है। इनको आप छू नहीं सकते, इनको आप देख नहीं सकते। ठीक है, ओके। वन मोर टाइप ऑफ नाउन वी आर कमिंग अक्रॉस, दैट इज कलेक्टिव नाउन्स। Collective noun are the name of group or collection of people or places, animal or thing. Okay, one more type of noun here, collective noun. Collective noun नाम होता है किसी ग्रुप का। ठीक है, किसी भी चीज़ का वो ग्रुप बन सकता है। ठीक है, जैसे फ्लावर्स का ग्रुप बन सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स का ग्रुप बन सकता है, चींटियों का ग्रुप बन सकता है। तो उस ग्रुप का एक अलग नाम दे दिया जाता है। तो वैसे वाले नामों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, लाइक एन आर्मी ऑफ एंट्स। ओके, तो यहाँ पे आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ फैमिली ऑफ ऑटर्स, ऑटर्स एक तरीके का जानवर होता है, तो यहाँ पे फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, म्यूजिशियंस का जब ग्रुप बनता है तो उसको हम लोग बैंड कहते हैं। ये होते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, एंड हियर अ फ्लॉक ऑफ शीप। ओके, तो फ्लॉक क्या है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन। ओके, हियर फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन। सो ये 4 आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे कलेक्टिव नाउन्स के। Now here is the exercise. For matching exercise is given, but we for the clearance and neat work we do not match. अब उसके सामने लिख सकते हैं, कॉलोनी के लिए एंड्स लिखिए, पैक के लिए वुल्व्स लिखिए, क्योंकि ये नाम होते हैं जब वुल्व्स कुछ सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अ पैक ऑफ वुल्व्स। ठीक है, ओके। स्वार्म ऑफ बीज, स्वार्म हम लोग बीज के लिए लगाते हैं। शोल फिश के लिए, क्लम्प बुशेस के लिए, फ्लीट शिप्स के लिए। ओके, राइट इट अकॉर्डिंगली। Here the answers are given. Colony ants, pack wolves, swarm bees, shoal fish, clump bushes and fleet ships. Okay, now see, you have one more exercise here. Underline the nouns according to their gender. Okay, now we will study gender. एक तो मैस्कुलिन जेंडर होता है जिसमें बॉयज़ आते हैं, एक फेमिनिन जेंडर होता है जिसमें गर्ल्स आती हैं, एक न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है, जिसमें जिस चीज़ का कोई जेंडर नहीं होता है ना ही वो लड़का होती है, ना ही वो गर्ल होती है, ना ही वो बॉय होता है। ठीक है, उसको न्यूटर कहते हैं। और कॉमन जेंडर का क्या मतलब है, एक जैसा जेंडर। ठीक है, मतलब जो अगर आप देख लो, एग्ज़ाम्पल लेते हैं कज़न मतलब चचेरा, कोई भी भाई या बहन कोई भी हो सकता है ना।
तो कज़न आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। थीफ लड़की या लड़का दोनों हो सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव डन द एक्सरसाइज। ज्वेल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, इसलिए हमने इसको ग्रीन किया है। थीफ कॉमन जेंडर है, इसमें लड़की लड़का दोनों हो सकते हैं। पुलिस वुमैन फेमिनिन है ना, लड़की है। सेल्समैन लड़का है। कज़न जो है वो फिर कॉमन हो गया क्योंकि इसमें लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। अंकल बॉय हैं। आंट फिर गर्ल है। हाउस क्या हो जाएगा, इसका कोई जेंडर नहीं होता है, ना ये लड़की होता है ना ही लड़का होता है। ओके, बॉय तो ये लड़का है, ब्लू करेंगे इसको। एम्प्रेस ये तो गर्ल है। पैलेस का कोई जेंडर नहीं होगा, ग्रीन करेंगे इसको। कोर्टियर्स इसमें लड़के लड़की दोनों हो सकते हैं ना। ब्राइड दुल्हन। गेस्ट मेहमान में कोई भी आ सकता है, लड़का लड़की। ग्रूम में ये तो दुल्हा होता है तो इसको बॉय होता है तो ब्लू करेंगे। नाउ ड्रेस का कोई जेंडर नहीं होता है, ये न्यूटर है। बान एक जगह होता है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, ठीक है, खेत के पास एक जगह होती है, तो इसका भी कोई जेंडर नहीं होगा। हॉर्स तो आता है आपका मैस्कुलिन में। मेयर किस में आती है, फेमिनिन में, ठीक है। रैट के लिए गर्ल और बॉय में कोई डिफरेंस नाम नहीं होता है, वो डिफरेंस तो होता ही है, पर इसके लिए भी हम लोग ब्राउन करेंगे कॉमन जेंडर। ओके, ठीक है। नाउ सी चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स। अब आपको जेंडर चेंज करना है, अगर वो बॉय है तो उसको गर्ल करना है, अगर गर्ल है तो बॉय करना है। एम्परर का क्या होगा, एम्प्रेस। मेयर का, मेयर जो गर्ल वाली वो हॉर्स होती है उसको मेयर कहते हैं। फिर हॉर्स होगा उसका। ब्राइड का ग्रूम। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नेफ्यू, नीस। ऑक्स का काऊ होगा, ठीक है। नाउ सी अनदर एक्सरसाइज। सर्कल द नाउन्स ऑफ द न्यूटर जेंडर, अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर। ओके, न्यूटर जेंडर मतलब जिसका कोई जेंडर हो ही नहीं सकता, तो उनको हमको सर्कल करना है। तो बैग का कोई नहीं हो सकता जेंडर, स्टेलेस्कोप का भी नहीं हो सकता, गार्डन का भी नहीं हो सकता, ओके, बुक्स का भी नहीं हो सकता। और बाकी जो हैं डॉक्टर, स्टूडेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल, ये लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, इसलिए कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर को हमें अंडरलाइन करना है। ओके, नाउ कुछ और भी दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। मैजिशियन ये लड़का लड़की दोनों हो सकता है, तो ये कॉमन है। हैट और फ्लावर ये दोनों न्यूटर जेंडर है क्योंकि ये इनका कोई जेंडर नहीं होता है। ओके, चाइल्ड लड़का लड़की दोनों हो सकता है, इसलिए हमें इसको अंडरलाइन करना है। नाउ आई एक्सरसाइज। सर्कल द नाउन्स दैट आर काउंटेबल। उन नाउन्स को आपको सर्कल करना है जो गिनती में आप गिनती कर सकते हो उनकी। शुगर की गिनती नहीं हो सकती, सॉल्ट की भी नहीं, बटर की भी नहीं, एग की भी नहीं, और बाकी इन चारों चीज़ों की हो सकती है। सो प्लीज़ आप इसको सर्कल करिए। ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, here we will go for seeing the changing we will see the rules for changing the nouns. okay, अगर कोई नाउन एक से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको चेंज करना पड़ता है प्लूरल में, और प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को हमको ध्यान में रखना है। ओके, देखिए सबसे पहला, अ प्लूरल नाउन इज़ मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू एग्जिस्टिंग नाउन। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंपली हमें सिर्फ एस ऐड करना होता है तो वो बन जाता है, ठीक है। एंड कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, अब सेकंड वाले में आते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें आखिरी में एस, डबल एस, एक्स, ओ, सी एच, एस एच
होता है तो फिर हम लोग को ध्यान में रखना है कि उसमें हम लोग आखिरी में ES लगाते हैं। ओके, तो वैसे ही बस का बसेस, बफेलो का बफेलोज़, याद रखिएगा कुछ रूल्स हैं। तो अगर वो नाउन आपका इन सब वर्ड से ख़त्म होता है तो आपको ES लगाना है। थर्ड में आइए। ओके, इन द थर्ड वन, सम नाउन्स एंडिंग विद O ओनली ऐड S। अब आपने पहले देखा यहाँ पे O जब होता है आखिरी में, सेकंड वाले में देखा ना आपने कि O जब आखिरी में होता है तो हम ES लगाते हैं, पर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें अगर आखिरी में O है तो हमें, जैसे फ़ोटो हो गया, तो इसमें ES नहीं, सिंपली बस S लगाते हैं। ठीक है, तो उस रूल्स के हिसाब से तो आपको ये याद रखना पड़ेगा किसमें हम लोग क्या लगाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। फोर्थ वन, nouns ending with Y with a consonant before it, take I in the place of the Y and add ES in the plural form। अब क्या होता है, कभी भी नाउन आपका अगर Y से ख़त्म होगा तो फिर आप क्या करोगे, उसमें Y हटाकर I लगाना है, फिर ES ऐड करना होगा उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। बेबी, बेबी में Y है आखिरी में, तो Y की जगह पर हमने I लगाया है, फिर उसके बाद ES लगाया है उसमें। ठीक है, वैसे ही सिटीज़ में भी है। ठीक है, सिटी में भी है, याद रखिएगा। नाउ नाउन्स एंडिंग विद FE, अगर कोई नाउन F या FE से ख़त्म होता है फिर आपको उसमें F हटाकर FE हटाकर V लगाना है, फिर ES लगाना होगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए नाइफ़ FE है आखिरी में तो आपको VES लगाना होगा। FE हटाकर V लगाया है और ES लगाया है। नाउ थीफ, थीफ के लिए F हटाकर हमने V लगाया, फिर ES ऐड कर दिया पीछे से। ठीक है, तो ये था आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 5। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 6 पे। सम वर्ड्स एंडिंग विद F ओनली ऐड S। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्ड F से ख़त्म होते हैं, उसमें सिर्फ S लगाते हैं हम। जैसे शेफ़ में शेफ्स, प्रूफ में प्रूफ्स। ठीक है, प्रूफ्स। 7, सम नाउन्स आर चेंज्ड टू देयर प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग EN। अब कुछ ऐसे होते हैं नाउन्स जिसमें हमें आखिरी में EN लगाना होता है। देखिए जैसे ऑक्स, तो ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्सन होता है। ओके, याद रखिएगा। ओके, now see rule number 8, some nouns change the plural form by changing the vowel। अब क्या होता है, कुछ nouns जब वो प्लूरल में चेंज होते हैं तो वो अपना वॉवल चेंज करते हैं। देखिए जैसे मैन में मैन लिखते हैं, मैंस नहीं लिखते हैं। ओके, फुट में फीट लिखते हैं ना, टूथ में हम लोग टीथ लिखते हैं। ठीक है, टूथ एक दांत को बोलते हैं, टीथ ढेर सारे दांतों को बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। Now see the 9th one. In compound word, S is added to the main word in the plural form. Okay. अब जब ऐसे वाले आपको नाउन मिल जाएंगी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो इसमें आपको नाउन को चेंज करना पड़ेगा। मदर्स हो जाएगा, स्टेपसन्स हो जाएगा, पासर्स हो जाएगा। ओके, नाउ सी some nouns have the singular and plural alike। अब क्या होता है, कुछ nouns के प्लूरल में भी वही होते हैं और सिंगुलर में भी वही होते हैं। ओके, तो जैसे डियर, शीप, सीरीज़, तो ऐसे वाले नाउन में आपके सेम होते हैं। ठीक है, शीप और स्कोर, इन सब में कभी भी कुछ भी नहीं ऐड करते हैं प्लूरल के लिए, सिंपली वही रहता है। Let's move further. One exercise is given here, and in this the question is this ना, make sentences with the plural form of these nouns। तो आपको सेंटेंस बनाना है। मैंने आपके लिए चेंज कर दिया है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। माउस को माइस कहते हैं, चाइल्ड को चिल्ड्रन कहते हैं, बस को बसेस, बेंच को बेंचेस, देन
वोल्केनो, वोल्केनोस, टॉयज़, लेडीज़ एंड डेयर। ओके, सो आपको इसके लिए सेंटेंस बनाना है कोई। ये आपका सिंपल सा एक्सरसाइज है कोई छोटा सा, तो आप सिंपल सेंटेंस बना लीजिएगा। ओके, नाउ सी, इन दिस यू हैव टू राइट अ लेटर। आपको लेटर लिखना है यहाँ पे। लेटर क्या होता है? चिट्ठी होती है ना, जिसमें आप अपनी बात दूसरे से कहते हो। ओके, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु लिव्स इन अनदर सिटी इनवाइटिंग हिम और हर टू विजिट यू इन। ओके, तो आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को। मैंने आपके लिए एक लेटर यहाँ पे लिखा है इन दिस पेज। लेटर का फॉर्मेट आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे, फिर अपना डेट लिखोगे, फिर अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे डियर करके, फिर आपको जो कुछ कहना है अपने फ्रेंड से वो आप लिखोगे। इसमें मैंने लिखा है कि वो ताजमहल बुला रहा है, अपने फ्रेंड को ले चल रहा है, ठीक है। और फिर आखिरी में आप अपना नाम लिखोगे। ओके, ये पैटर्न होता है लेटर का। आपको सिर्फ यहाँ पे लेटर पैटर्न पढ़ना है, और जो बात आप लेटर में कहना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आप कई तरीके के लेटर लिख सकते हो। ओके, now let's come to next exercise. See, fill in the blanks with the types of noun given in the bracket. तो अब आपको जो ब्रैकेट में नाउन दिया हुआ है उसके हिसाब से फिल करना है। सबसे पहले में देखिए कॉमन नाउन दिया हुआ है, तो कॉमन नाउन के लिए स्विम किस में करते हैं, स्वैम किस में करते हैं, रिवर में। तो आप रिवर लिख दो वहाँ पे। ओके, उषा स्वैम अक्रॉस द रिवर टू सेव द पटेल। ओके, सेकेंड वन, द फूड इंस्पेक्टर वॉन्ट्स टू चेक द। पहले मैंने कुछ गलत आंसर्स दे दिए थे, अब ये सही आंसर है ब्यूटी ऑफ आवर किचन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको डालना है, ब्यूटी को, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नाउ सी द थर्ड वन, माई ब्रदर लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन विद हिज फ्रेंड विशाल। तो आपको प्रॉपर नाउन डालना है, मैंने पढ़ाया है ना प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई स्पेशल नेम, तो आप कोई भी नेम डाल सकते हैं। ओके, नाउ सी द फोर्थ वन, पीपल लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है आपको, तो आप ऑनेस्टी लिख सकते हैं। ओके, नाउ इन द फिफ्थ वन आपको कॉमन नाउन लिखना है। शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट नियर सैन फ्रांसिस्को। अपार्टमेंट क्या होती है? एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे ढेर सारे लोग एक साथ रहते हैं। ओके, ओके, now let's come to another exercise. Okay, in this exercise students you have to read the paragraph and change the gender of the any। अगर आपको masculine मिला है तो आपको feminine करना है, और common gender को underline करना है, neuter gender को circle करना है। common gender क्या होता है? मतलब वो चीज़ इन लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, और न्यूटर जेंडर मतलब इसका कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। माय अंकल, अंकल मैस्कुलिन है तो फेमिनिन क्या होगा? आंट होगा, आप लिख दीजिए वहाँ पे, ठीक है। इज़ एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या हो जाएगा? कॉमन, ठीक है। आर्टिस्ट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। फार्म क्या है? न्यूट्रल जेंडर है, ये ना तो लड़की ना तो लड़का होगा। ओके, एनिमल्स क्या है? गर्ल भी हो सकता है, इसमें बॉय भी हो सकता है, ठीक है। मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ना सी फार्म, फार्म न्यूट्रल जेंडर है तो इसको मैंने सर्कल किया है। अब ब्रदर पे आइए, ब्रदर का सिस्टर होगा ना, ब्रदर मैस्कुलिन है तो सिस्टर फेमिनिन, यही करना है आपको इसमें। ना सी हेंस का क्या होगा? कॉक्स। चिक्स जो है वो गर्ल और बॉय दोनों हो सकता है, क्योंकि चिक्स छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हम बच्चे होते हैं तो हम चाइल्ड कहलाते हैं, उस समय हम गर्ल बॉय अपने आप को मेंशन नहीं करते, ठीक है। उसी तरह चिक्स हैं। फिर वी सॉ लार्ज बुल, बुल के लिए आप ये जानो, बुल ना ही लड़का ना ही लड़की होती है, ठीक है, तो हम वो लिखेंगे। नाउ अगर हम फेंस की बात करें, ओके लेट्स मूव फर्दर। अंकल के लिए हमने आंट लिखा है, ठीक है। अंकल जो है मैस्कुलिन जेंडर हो गया, और फिर आंट फेमिनिन जेंडर। पिक्चर्स जो हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता,
ठीक है। फार्म का भी कोई जेंडर नहीं, ईजर का भी नहीं, पेंट्स का भी नहीं, ब्रशेस का भी नहीं, फील्ड्स का भी कोई जेंडर नहीं हुआ, पोर्ट्रेट्स का भी नहीं, पॉट्स का भी नहीं। अब आते हैं मिल्कमेड पे। मिल्कमेड एक औरत है जो दूध बेचती है, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग मैस्कुलिन जेंडर करें तो मिल्कमैन हो जाएगा। ओके, ये था ये एक्सरसाइज। पीपल के लिए भी, पीपल गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पीपल जो है यहाँ पे गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं नीचे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन दिस यू हैव टू यूज़ कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन, शीप के लिए हम लोग फ्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। लायंस के लिए प्राइड, एंड्स के लिए कॉलोनी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, तो गवर्नमेंट भी एक कलेक्टिव नाउन है। अब किसी गेम के लिए टीम होती है ना, फैमिली भी एक लोगों का झुंड होता है जो घर में रहते हैं एक साथ, ठीक है ना। सी कार्ड्स के लिए हम लोग पैक यूज़ करते हैं, नेम्स के लिए लिस्ट, और जब ढेर सारे लोग होते हैं तो उसको क्राउड कहते हैं। थीव्स के लिए गैंग यूज़ होता है, ठीक है। स्टार्स के लिए क्लस्टर, और क्रू कुछ लोग हैं जो फ्लाइट पर रहते हैं, ठीक है, हेल्प के लिए, ठीक है। ये भी सब कलेक्टिव नाउन है। नाउ सी हियर इज एक्सरसाइज गिवन, आपको सही स्पेलिंग लिखनी है ज़रूरत के हिसाब से, ओके। देयर आर 5 स्टूडियोज़, तो स्टूडियोज़ की करेक्ट स्पेलिंग जो अंडरलाइन मैंने किया है ना वो होती है, ठीक है। देयर आर 5 स्टूडियोज़ फॉर एनिमेशन फिल्म। नाउ सी दे आर ईटिंग देयर फूड, फूड्स नहीं होता है, फूड होता है। द स्ट्रेंजर ड्रीव आउट अ नाइफ, अ नाइफ लिखा है ना, अ है इसलिए हम लोग ने नाइफ बोला है, बस एक ही नाइफ। देयर वर अ फ्यू क्रैक्स, फ्यू लिखा है ना तो मतलब थोड़े से, मतलब एक से ज़्यादा, तो क्रैक्स एस लगा दिया हमने, ठीक है। सी नेक्स्ट, द कुक प्रिपेयर्ड चिकन सैंडविचेस, सैंडविचेस की सही स्पेलिंग ये होती है, ओके। नाउ सी दे केप्ट 5 पीस ऑफ लगेज, लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा, ठीक है। लगेज तो खुद ही ग्रुप ऑफ सामान का होता है ना, जब सामान ढेर सारे होते हैं तो उनको लगेज कहते हैं। आई एन्जॉय ईटिंग मैंगो आइसक्रीम, मैंगोज आइसक्रीम नहीं, ओके। वी कट द स्वीट बंस इनटू हाफ्स, तो एक तो नहीं काटते हो, दो से एक से ज़्यादा होता है इसलिए हम लोग एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, ओके। अब यहाँ पे शीप आप जानते हो, शीप्स नहीं होता है कभी भी, शीप होता है, ठीक है। तो शीप भी अंडरलाइन करना। नाउ सी द लास्ट एक्सरसाइज हियर, यू हैव टू राइट 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपकी क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है। 3 आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है, 3 क्वालिटीज़ अपनी लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। ऑनेस्टी का क्या मतलब है? ईमानदारी। फिर पोलाइटनेस का मतलब है प्यार से बात करना, हम्बलनेस का मतलब है नम्रता, ठीक है। अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हैं, ओके। ओके, स्टडी वेल एंड बी सेफ, ओके। थैंक यू।